علیکم ناظرین، آج ہم مجد اعظم امام احمد رضا خان سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگیات کے بارے میں جانیں گے اور ان کی ولادت اور علم دین حاصل کیا، ان کی پوری زندگیات کے بارے میں جانیں گے۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کی ولادت شریف 10 شوال 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی بروز ہفتہ جوہر کے وقت بریلی شریف اتر پردیش ہندوستان میں ہوئی تھی۔ آپ کا نام ہے اسم گرامی میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت پروانہ شامہ رسالت مجد دینوں ملت حامی سنت ماہی بدعات عالم شریعت پیر طریقت امام اس کے محبت باعث کے خیر و برکت حضرت علامہ مولانا مفتی محدث الحاظ الحافظ القاری الساہ امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ کا نام محمد ہے۔ تاریخی نام المختار جد امجد نے احمد رضا توضیح فرمایا ہے۔ بعد میں آپ نے خود اس اسم شریف کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا اضافہ فرمایا، جیسے کہ آپ نے نعتیہ دیوان میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خوف نارک جرا رجا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا نسب نامی، آپ کا نسب نامی اکثر کتب میں مستند روایتوں کے ساتھ درج کیا ہے۔ امام احمد رضا خان بن مولانا نقی علی خان بن مولانا رضا علی خان بن مولانا حافظ محمد کاظم علی خان ابن مولانا محمد اعظم خان بن محمد سعادت یار خان بن محمد سعید اللہ خان رمی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے خاندانی آلات، آپ کے آباء اجداد قندار افغانستان کے مقرر قبیلہ بڑھیج کے پٹھان تھے، جنہیں افغان بھی کہا جاتا ہے۔ محمد سعید اللہ خان صاحب جو عالی جہاں شروعات جنگ بہادر کے لقب سے مشہور تھے اور قندار سے مغل بادشاہوں کے عہد میں سلطان محمد نادر شاہ کے ساتھ لاہور تشریف لائے۔ اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کی وجہ سے حکومت وقت نے انہیں سس حاضری منصب جلیلہ سے سرفراز کیا۔ لاہور کے شیش محل آپ کی جاگیر میں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد دلی پہنچے تو اس وقت آپ سس حاضری کے عہدے پر فائز تھے اور شجاعت جنگ کا حکومت کی جانب سے ایک عظیم تگمہ اور خطاب دیا گیا۔ حضرت سعید اللہ کے صاحبزادے حضرت سعادت یار خان سلطان وقت کی حکومت کے وزیر مالیات تھے۔ ان کی امانت داری اور دیانت داری کا یہ عالم تھا کہ سلطان محمد شاہ نے بدایوں کے کئی مقام پر جگہ عطا فرمائی، جو آج بھی اس خاندان کے حصے میں ہے، جن کے صاحبزادے محمد اعظم خان صاحب کی وزارت اعلیٰ کے عہدے پر فائز تھے، مگر کچھ سالوں کے بعد سلطنت کی ذمہ داریوں سے سبق دوسی اختیار کر کے جہد و تقویٰ اور ریاضت بروحانیت کی طرف مکمل فائز طور پر فائز ہو گئے اور حضرت محمد اعظم کی جات سے قندار کے خانوادوں میں علم و فاضل برد فائز جہد و تقویٰ اور بول بالا شروع ہوا، اور وہی جو عظیم خاندان ہے جن کی روشنی کرنوں سے پورے عالم کو علم و حکمت کا درس دے کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا حلیہ مبارک، آنکھیں موجوں اور خوبصورت نگاہوں میں قدر تیزی جو حقائق کی تہہ تک پہنچنے میں بے مثال اور مشہور روزگار تھیں، پیشانی کشادہ بلند اور دمکتی ہوئی، جس پر عظمت اسلام کی لکیریں ظاہر تھیں۔ مخالفتوں کے طوفان پہم یلغار میں بھی جس پر کبھی بل نہیں آیا، چہرہ مالیہ
शगुफ्ताओं, शादाब, जलाल व जमाल की खुली तफसीर, जिस पर प्यारे मोहब्बत और खुलूस की वफा की चमकती थी। और अगर कभी तेवर बिगड़ जाते तो दहकते हुए शोला और बरसता हुआ अंगारा नाक, जो हमेशा ऊंची और सर बुलंद रही, जिसने खारजी और दाखिली हर मजहब पर इस्लाम दुश्मन ताकतों की नाकें खाक आलूद कर दी। आवाज निकलती तो मुंह से फूल झड़ते, सीना उलूमे मारिफ का गंजीना, हमीले शरीयत व तरीकत, दिल आईने की तरह साफ सफाफ, खौफे खुदा, फिक्रे आखिरत, फरोके दीन, जहनो दिमाग आलिमाना व मोतजीदीना, वारीक बीनी व नोतो रस जकाबतो फतानत, जिसकी बेनजीर दीनी इल्मी मिसाल नहीं है। पंजा फौलादी असदुल्लाही, जिससे गुस्ताख खाने रसूल का खून हमेशा टपकता रहा, जिसने बड़े बड़े सूरमाओं की कलाइयां मरोड़ कर रख दी। कलम रवा दवा सयाल, लेकिन मोहताद और जिम्मेदार, निडर और बेबाक, सारे दीने मतीन मुहाफिज नामूसे रिसालत, जो दुनिया के हर हरबे का जवाब अपनी तहरीर से दे सकता था, और जो सीने बातिल में नस्तर बनकर चुप जाता, गोया किलके रजा खंजरे खूबियार बरकबार, अदा से कह दो खैर मनाए ना सर करें। आपकी तालीम व तरबियत जद्दे अमजद हजरत मौलाना साहब रजा अली खान साहब और वालिद ग्रामी हजरत मौलाना साहब नकी अली खान साहब कुद्दीसा सिरहुमा की आगोश तरबियत व मोहब्बत में हुई, और बाकायदा 1275 हिजरी के शुरू में ही आपकी तालीम का आगाज हुआ। आपके बचपन का हैरत अंगेज वाक़या जो इस तरह है कि बिस्मिल्लाह शुरू करने के बाद उस्ताजे मोहतरम के कहने के मुताबिक आप अबजाइदी तमाम हुरूफ को पढ़ते रहे, और जब ला की बारी आई तो खामोश रहे। उस्ताद ने कहा पढ़ो मियाँ, तो आपने फरमाया कि अलग अलग तो दोनों हरफों को पढ़ चुका हूँ, दोबारा क्यों? जद्दे अमजद हजरत मौलाना साहब रजा अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। आपने फरमाया कि बेटा उस्ताद का कहना मानो। आपने पढ़ तो लिया, मगर चेहरे से उलझन दूर करने के लिए फरमाया तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है और तुम्हारा समझना बेजहा है, मगर बात यह है कि शुरू में जिसको तुमने अलिफ पढ़ा था हकीकत में वो हमजा है और लाम के साथ अलिफ, चूंकि अलिफ हमेशा साकिन होता है, इसके लिए लाम के साथ मिला दिया जाए। तो आपने फिर ऐतराज किया कि उसको किसी भी हर्फ के साथ मिला देना काफी था, लाम के साथ क्यों मिलाया गया? जद्दे अमजद हजरत मौलाना साहब रजा अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत मोहब्बत के साथ गले से लगा लिया और फरमाया बेटा दरअसल लाम और अलिफ में सूरतन और सीरतन दोनों एतबार से मुनासिबत हैं। ज़ाहिरिन लिखने में दोनों ही सूरत एक सी होती है और सीरत इस वजह से कि लाम का कल्ब अलिफ है और अलिफ का कल्ब लाम है, यानी वो इसके बीच है और वो इसके दरमियान। तब आपका मुतमईन होकर उस्ताद के मुताबिक पढ़ते हो रहे। आपकी उम्र शरीफ अभी 4 साल की थी। आपने कुरान पाक का नाजरे खत्म कर लिया। 6 साल की उम्र शरीफ रबीउल की महफिल मिंबर पर रौनक अफरोज होकर बहुत बड़े अज़मे में मिलाद शरीफ पढ़ा। 8 साल की उम्र में फने नहो की मशहूर किताब हिदायतुन नहो पढ़ी और खुदा दादा इल्म के जोर के ये आलम था कि इस छोटी सी उम्र में हिदायतुल नहो की शहर अरबी में लिखी। नीज किताब के चौथाई हिस्सा उस्ताद से पढ़ते और बाकी खुद सुना देते। उर्दू फारसी की शुरू की किताबें अपने जनाब मिर्जा गुलाम कादिर बेग बरेलवी
रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी। बाद में मिर्जा साहब ने आपसे हिदाया पढ़ी। फिर तमाम दीनियत की तालीम बा जुमला उलूम व फुतून आपने वालिद माजिद इमामुल मुत्तकील मीन हजरत मौलाना शाह नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुकम्मल फरमाया। 13 साल की छोटी सी उम्र में 1282 हिजरी में वालिद माजिद ने दरसियात की तकमील की। बाद में थोड़े दिनों रामपुर में क़याम करके मौलाना अब्दुल अली रियाजी दान शाह सरे चिगमिनी के चंद सबक पढ़े। आपके उस्तादे किराम वालिदे मोहतरम रईसुल आतकिया हजरत अल्लामा नकी अली खान आपने जद्दे अमजद हजरत मौलाना रजा अली खान हजरत मौलाना गुलाम अब्दुल कादिर वेग से उलूम दीनिया की तालीम हासिल करके सिर्फ 14 साल की उम्र में यानी 1286 ईस्वी में उलूम दीनिया की तमील कर ली और इसी साल 1286 हिजरी में ही आपने मनसद्दे इफ्ता पर जलवागार हुए। आपने अपनी फरागत का जिक्र खुद ही इस तरह फरमाया है। सावान 1286 हिजरी 1869 ईस्वी में उलूमे दरसिया से फरागत हासिल की और उस वक्त में 13 साल 10 महीने और 5 दिन की उम्र थी। उलूमे अरबिया से फरागत के बाद ही वालिद माजिद साहब मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने इफ्ताह की जिम्मेदारियां भी सौंप दी और इस छोटी सी उम्र में फतवा नवेसी का आगाज फरमाया। जैसे कि एक बार आपकी खिदमत में एक सवाल आया कि बच्चे की नाक में दूध चढ़कर हलक में उतर जाए तो रजात साबित होगी या नहीं। आपने इरशाद फरमाया, मुंह या नाक से औरत का दूध जो बच्चे के पेट में पहुंचेगा हुर्मत रजात लाएगा। और फरमाया ये वही फतवा है जो 14 सावान 1286 हिजरी 1869 ईस्वी में सबसे पहले लिखा है और इसी 14 सावान 1286 हिजरी में मनसबे इफ्ता अता फरमाया हुआ है। आप सिलसिले आलिया कादरिया रजविया के 39वें बे इमाम बेस सह के तारीख हैं। सैखुल इस्लाम बल मुस्लिमीन हुमामुल असर आयतिम मिन आयतिल्लाह हसानुज जमा बुरहानुल औलिया मुजद्दिद जमाना आलिम हामिय सुन्नत माहिय बिदअत आला हजरत जमीउल बरकत अशाह हाफिज कारी मुफ्ती इमाम अहमद रजा खान कादरी बरकाती रहमतुल्लाह अलैह आप सिलसिलाए आलिया कादरिया रजविया के 39वें इमाम बा शाइख तरीकत हैं। आपके फाजिलो कमाल बेशुमार हैं। जेल में सिर्फ चंद अकाबिर उलमाए किराम के अकबाल पेश किए जाते हैं। तफसील के लिए हसामुल हरमैन अदौलतुल माकिया का मुलायत करें। हजरत शेख अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद सदका बिन जैनी दैलान जिलानी मस्जिद हराम मक्का मुअज्जमा आप फरमाते हैं कि पाक है वो जात जिसने इसके मुआफिज मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह को फाइज व कमालात से मुशर्रफ मुख्तस फरमाया और इससे इस जमाने के लिए छुपा के रखा है और बिला आखिर वक्त आने पर जाहिर फरमा दिया। इमाम आइमा मिल्लत इस्लामिया के मुहज्जिद नूर यकीन और नूर लकब को तरबियत यानी ताकत देने वाले यानी शेख अहमद रजा खान अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहान में उनको कबूल व रिजवान अता फरमाए। मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इस आलिम व अमल आलिम फाजिल साहिब मनाकिब व मफाकिर जिस को देखकर ये कहा जाए कि अगले पिछले के लिए बहुत कुछ छोड़ गए, यकताए रोजगार वहीदे अस्न इस मौलाना शेख अहमद रजा खान को मुकर्रर फरमाया। और वो क्यों ऐसा ना हो कि उलमाए मक्का मुअज्जमा उसके लिए इन फजाइल की गवाही दे रहे हैं। अगर वो इस मकाम रफ़ी पर मुतकम्मिन ना होता तो उलमाए
मक्का मुअज्जमा उसके लिए ये गवाही ना देते। हाँ हाँ हाँ, मैं कहता हूँ कि उसके हक में ये कहा जाए कि वो इस सदी का मुअज्जिद है तो हक व सही है। हजरत शेख मोहम्मद करीमुल्लाह मुजाहिर मदनी फरमाते हैं कि मैं कई साल के बाद मदीना मुनव्वरा जहादुल्लाह सरफहू व ताजमी में मुकीम हूँ। हिंदुस्तान से हजारों साहिब इल्म आते हैं, उनमें उलमा, सुलहा और अतकबिया सब ही होते हैं। मैंने देखा है कि वो शहर के अगली कूचों में मारे मारे फिरते हैं, कोई भी उनको मुड़कर नहीं देखता। लेकिन फाजले बरेलवी की अजीब शान ये है कि उलमा और बुजुर्ग सभी उनकी तारीफ जो चले आ रहे हैं और उनकी ताजीम व तकरीम में सबक ले जाने की कोशिश करते हैं। ये अल्लाह का फजल खास है, जिसे चाहता है नवाजता है। आपके खाइसल मुबारक, आप हंसते वक्त कभी अहकाक ना लगाते, जमाई आने पर उंगली दांतों में दबा लेते, जिसकी वजह से कोई आवाज ना होती। किबले की तरफ मुंह करके कभी ना थूकते, ना किबले की तरफ कभी पांव फैलाते। खत बनवाते वक्त अपना कंगा शीशा इस्तेमाल करते। हमेशा नमाज व जमात अदा करते। 24 घंटे में सिर्फ 1.5-2 घंटे आराम फरमाते। बाकी तमाम वक्त तसनीफ व कुतुब बिनी और दूसरी खिदमतें दीनिया में सिर्फ सर्फ फरमाते और हमेशा तसनीफ, तालीफ, कुतुब बीनी, फतवा नवेसी में वक्त गुजरता और औराद व वजीफ बासगाल के लिए खलवत में शरीफ ले जाते। आप हमेशा बसकल नामे अकदस रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोया करते। इस तरह के दोनों हाथ मिलाकर सर के नीचे रखते, पांव समेट लेते, जिसमें मीम कोहनिया, ये मीम पांव दाल बनकर गोया नामे पाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शा बन जाता। आप जाहिर व बातिन एक था कि जो कुछ आपके दिल में होता वही जबान मुबारक से अदा फरमाते, और जो कुछ जबान से फरमाते तो उस पर अमल होता। आपके इखलाके हमीद है। आप अल हुबूब लिल्लाही वल बुजगहे फिलहा की जिंदा तस्वीर थे, और शहीदाओं तलल खुफार व रोमाओं बैना के मुताबिक बददीनों मुल्हिदे मुर्तंदों और गुफ्फार पर चट्टान की तरह सख्त थे। आप अपनों के लिए आगोश आमदर और बाजुए बिरादर थे, और गरीबों के लिए एक गजबनाक और बिखरा हुआ शेर जिसमें नरमी व मुरब्बत थी, शक्ति व हालवत भी, रिकबत व लताफत भी थी, और शिद्दत सलाबत भी। सब किसी सुन्नी आलिम से मुलाकात होती तो दिल बाग हो जाता। इसकी इतनी इज्जत करते कि लायक वो अपने को ना समझता। जब हाजी बैतुल्लाह करके आपकी खिदमत में हाजिर होते तो उनसे पहले यही पूछते कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी हाजिरी दी। अगर वो हाँ करते तो फौरन उनके कदम चूम लेते, और अगर कहते कि नहीं तो फिर उनकी जानिब बिल्कुल तवज्जो ना फरमाते। आपसे एक राफजी यानी शीशा मिलने पर आया तो आपने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। एक बार हजरत नन्हे मियाँ मौलाना मोहम्मद रजा ने असर के बाद आपकी खिदमत में अर्ज किया कि हैदराबाद दक्कन से एक राफजी सिर्फ आपकी जियारत के लिए आया है और अभी हाजिर खिदमत होगा। तकलीफे कल्ब के लिए इससे बातचीत कर लीजिएगा। दौरान गुफ्तगू ही वो राफजी भी आ गया। हाजरीनी मजलिस का बयान है कि आला हजरत उसकी तरफ बिल्कुल मुतज्जबो ना हुए, यहाँ तक कि नन्हे मियाँ साहब ने उसको कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो बैठा
बैठ गया। आला हजरत के तुफ्तगू ना फरमाने से उसको भी कुछ बोलने की जरूरत ना हुई। थोड़ी देर बैठकर वो चला गया। उसके जाने के बाद नन्हे मियाँ ने आला हजरत को सुनाकर ये कहा कि वो इतनी दूर से सिर्फ मुलाकात के लिए आया था, अखलाकन तवज्जो फरमा लेते, क्या अर्ज था। हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आकर फरमाया, मेरे अकाबिर पेशवाओं ने मुझे यही अखलाक बताए, फिर इस पर कई हदीसें बयान की। आपकी जुदू सखावत, आपकी हुकूमल जिंदगी सल्फ साइबरीन सवालिहीन के तरीके पर गुजरी है। अखलाक व अदात, इबादत व रियाजत के अलावा बख्शिश व अता के मैदान में भी आपकी जिंदगी तकलीदी जिंदगी है। जैसा कि सानए अक़दस से कोई साहिल खाली वापस ना होता, बेवकान की इबादत और ज़रूरतमंदों की हाजत रवाई के लिए आपकी जानिब से माहवार रकमें थीं, और ये इमदाद सिर्फ मकामी लोगों के लिए ही नहीं बल्कि बजरिए मनी आर्डर इमदारी रकमें रवाना फरमाया करते थे। बैत व खिलाफत, आप 1294 हिजरी 1877 ईस्वी में अपने वालिद माजिद साहब मौलाना मोहम्मद नकी अली खान, हजरत ताजुल फजूल मौलाना शाह अब्दुल कादिर मुसाहिब रसूल बदायूनी के साथ हजरत शाह आले रसूल मारबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और इसीलिए आलिया कादरिया में बेअत से मुशर्रफ हुए। इजाजतों खिलाफत से भी नवाजे गए। आपको जिन सलासिल इजाजतें खिलाफत हासिल थीं उसकी तफसील इस तरह थी: कादरिया, बरकतिया, जदीदा की कदीरिया, अवाइया, कदीमा, करीरिया, हिदाया, करीरिया, रजाकिया, कदीरिया, मसूरिया, चिश्तिया, निजामिया, कदीमा, चिश्तिया, महबूबिया, जदीही, सोहरबदिया, वाहिदिया, सोहरबदिया, फजलिया, नक्शबंदिया, अलाइया, सिद्दीकिया, नक्शबंदिया, अलाइया, अलबिया, बदिया, अलबिया, मनाबिया, बरगहे, वारगहे। शेख की अकीदत यानी आपके पीरो मुर्शिद की आपसे मोहब्बत। आपको आपके शेखे तरीकत ने उसी वक्त बेअत के साथ ही खिलाफत व इजाजत से नवाज दिया जिस का इजहार हजरत साहब मौलाना अबुल हुसैन अहमद नूरी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह शेखे तरीके से इस तरह फरमाया, हुजूर आपके यहाँ तो काफ़ी अरसे बामुशक्कत मुजाहिदात व रियाजत के बाद खिलाफत व इजाज़त दी जाती है, तो फिर उसकी क्या वजह है कि इन दोनों आला हजरत और आपके वालिद माजिद को बेअत करते ही खिलाफत दे दी गई? तो हजरत इरशाद फरमाया कि मियाँ साहब और लोग जंग आलूद मैला कुचैला दिल लेकर आते हैं, इसकी सफाई और पाकीज़गी के लिए मुजाहिदते तबीला रियाजतें सक्काका की जरूरत पड़ती है। ये दोनों हजरत साफ सुथरा दिल लेकर हमारे पास आए हैं, उनको सिर्फ इंतहा साले निसब की जरूरत थी और वो मुरीद होते ही हासिल हो गई है। सिर्फ आपके मुर्शीद गिरामी ने यह भी फरमाया है कि मुझे इस बात की बहुत फिक्र थी कि जब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ऐ आले रसूल, तू मेरे लिए दुनिया से क्या लाया, तो मैं बारगाहे इलाही में कौन सी चीज पेश करूंगा। लेकिन वो आज फिक्र मेरे दिल से दूर हो गई, क्योंकि जब अल्लाह पाक पूछेगा कि अहले रसूल तू मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं अर्ज करूंगा, इलाही तेरे लिए अहमद रजा लाया हूँ। ताजदारे किस्बरे उलूम व फनून, आप हैरत अंगेज जहानत व फतानत
के मालिक थे। जैसा कि आप 14वीं सदी का बेमिसाल अबकरी शख्स कहा जाए तो बेजा ना होगा। आपने उलूमे दरसिया के अलावा दीगर उलूम व फ़नूल की तहसील की और बाज उलूम व फ़नूल में खुद आपकी तवा सलीम ने रहनुमाई की। ऐसे तमाम उलूम व फ़नून की तादाद 45 है, जिसकी तफसील ये है: इल्म कुरान, इल्म हदीस, उलूम हदीस, फ़िक़ह जुमला, मज़ाहिब, उसूल फ़िक़ह, जिदल, तफसीर, अकाइद, कलाम नहो, सर्फ, बयान, बदी, मतीक, मुनाजिरह, फ़लसफ़ा, तकसीर, हयात, हिसाब, हिंदीसा, किरात, तजवीद, तबस्सुफ़, सुलूक, अखलाक, अस्मा, उरिजाल, सैर, तारीख, लुगत, अदब, तौक़ीत, हयात जदीदा, मंदरजा वाला, उलूम के इल्मुल फ़राइज़, उरूजो, कवाफ़ी, नुज़ूम, औक़ाफ़, फ़न्नो तारीख़, आदात, नज़्मो नसर, फ़ारसी नज़्म, हिंदी ख़त, नस्क और ख़त, नस्तालीक, गरह भी कमाल हासिल किया। इस तरह आपने जिस उलूम व फ़ुतून पर दस्त हासिल किए, उनकी तादाद 54 से मुताज़ाबिर हो जाती हैं। हमारे ख्याल में आलमे इस्लाम में मुश्किल से कोई ऐसा आलिम नज़र आएगा जो इस कदर उलूम व फ़नून पर दस्तगाह रखता हो। आपका पहला हज, आपकी पहली बार 1295 हिजरी 1878 ईस्वी में आपने वालिद माजिद मौलाना नकी अली खान के साथ में ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए तशरीफ़ ले गए। इस सफ़र मुबारक में मक्का शरीफ से मदीना शरीफ से रवानगी के वक्त एक नज़्म तहरीर फरमाई जो वारदात व कैफियत कबीलियत की आईनादार है और जो इसके हर्फ से बुए मोहब्बत फूट रही। इस नज़्म का मतलब है: हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। बेशक इस सफ़र मुक़द्दस में हरमैन शरीफैन के अकाबिर उलमा मुफ्ती सफ़ाया अहमद दहल खान और मुफ्ती हनीफिया शेख अब्दुल रहमान सिराज वगैरह से इल्मे हदीस, तफसीरे, फ़िक़ह और उसूल फ़िक़ह में संदेह हासिल की और इसी सफ़र मुबारक में हरम शरीफ में नजामे मगरिब के बाद एक और इमाम सफ़ाया शेख हुसैन बिन सालेह बगैर किसी साबिका तारुफ के आगे बढ़ चढ़ कर फाजली बरेलवी का हाथ पकड़कर अपने हाथ घर ले गए। मोहब्बत से देर तक आपकी नूरानी पेशानी देखते रहे और जोश अकीदत में फरमाया: बेशक मैं इस पेशानी में अल्लाह का नूर महसूस कर रहा हूँ। शेख हुसैन बिन सालेह मैसूफ ने आपको सेहा सित्ता की सनद और सिलसिलाए आलमिया कादरिया की इजाज़त आपने दस्तखत से इनायत फरमाई और आपका नाम निजाउद्दीन अहमद रखा। आपका दूसरा हज, दूसरी बार 1323 हिजरी मुताबिक 1905 ईस्वी में आप हज बैतुल्लाह की ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए गए। इस मौके पर भी एक नज़्म लिखी थी जिसका मतलब ये है: शुक्र खुदा की आज घड़ी इस सफ़र की है जिस पर निसार जान फलाह सफ़र की है। इस मुबारक सफ़र में उलमाए हिजाज ने आपकी बड़ी कदरो मंजिलत की है, जिस पर बखूबी अंदाज़ा आपकी शोहरे आफाक किताब हस्सामुल हरमैन अद्दौलतुल मक्किया और तिफुल फ़कीहिल फातिम वगैरह के मुताला
से होता है। मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह इस सफर में आपके साथ थे। आप फरमाते हैं, इजाजत तलबी के लिए सबसे पहले मौलाना सैयद अब्दुल हई मक्की तशरीफ लाए। उनके साथ एक जबान सैलाह शेख हुसैन जमाल बिन अब्दुल रहीम भी थे। दोनों हजरात को सनादे इजाजत अता फरमाई। उनके बाद मौलाना शेख सलाह कमाल और वाज दूसरे अहले इल्म आए और इजाजत से मुशर्रफ हुए। यहाँ तक कि उल्मा का आपके पास हुजूम रहता था। मुलाकात व ज़ियारत करने वालों की भीड़ 12 बजे रात से पहले हटने का नाम नहीं लेती। यहाँ तक कि अगर किसी को तन्हाई में आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से मिलना होता तो वो आधी रात के बाद ही मिल सकता था। आप साथ खुलूस व अकीदत में मदीना मुनव्वरा जादुल्ला सरफहू व ताज़ीमा के हजरात किराम ने बासिद गान मक्का शरीफ से ज़्यादा हिस्सा लिया और आप कसीरे उलमाए किराम को सनहा दे और इजाज़तें और खिलाफतें अता फरमाई। माखिज व मराजे तज़किराए मसाइके कदीरिया बरकातिया रज़बिया फाजले बरेलवी उलमाए हिजाब की नज़र में तज़किराए उलमाए अहले सुन्नत अताए आला हजरत सैयद शाह आले रसूल अहमदी सरकार आला हजरत के पीरो मुर्शिद आपकी हालात ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। आपकी बिलादत शरीफ माहिर रजाबुल मुअज्जब 1209 ईस्वी हिजरी मुताबिक 1795 ईस्वी महारारा शरीफ जिला एटा उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में हुई थी। आपका नाम है इसमें ग्रामी आपके नाम है नामी आले रसूल और लक़ब खातिमुल अकाबिर है। आपके वालिद माजिद आपके वालिद माजिद का नाम है इसमें ग्रामी सैयद आले बरकात सुतरे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी तालीम व तरबियत आपकी तालीम तरबियत वालिद माजिद की आगोश सफगात में हुई। इन्हीं की निगरानी में आपकी नसो नुमा परवरिश हुई। आपकी शुरू की तालीम हजरत ऐनुल हक शाह अब्दुल मजीद बदायूनी साहब हजरत मौलाना शाह सलामतुल्लाह कस्फी बदायूनी ने से खानकाए बरकातिया में पढ़कर फिरंगी महल के उलमा मौलाना अनवार शाह फिरंगी महली हजरत मौलाना अब्दुल बासे हजरत मौलाना शाह नूरुल हक रजा की लखनवी उर्फ मुल्ला नूर से कुतुब माकुलात इल्मे कलाम इले फ़िक़ह व उसूल की तहसील व तकमील फरमाई। आपकी दास्तारे फजीलत और आपको इल्मे हदीस की सनद किसने दी? सिलसिलाए रज़ाकिया की सनद व इजाज़त हासिल फरमाई। 1226 हिजरी में हजरत मखदून शेखुल आलम अब्दुल हक रदोलवी के उर्स के मुबारक मौके पर मशहूर उलमा मसाइक की मौजूदगी में दस्तार फजीलत से सरफराज फरमाया गया और इसी सन पे हुजूर अच्छे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के इरशाद में बमूजिब हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुअज्जिद देहलवी के दरसे हदीस में शरीक हुए। सिहा सित्ता का दौरा करने के बाद सलासिल हदीस व तरीक़त की सनादें अता फरमाई और सनादे इल्म हिदसा को 2 मकाला अकली 10 सुनाकर मौलाना शाह नियाज अहमद रजा बरेलवी से हासिल की। फ़न तीब आपने फ़न तीब में अपने वालिद माजिद सैयद
शाह आले बरकत सुतरे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह से और हकीम फरजंद अली खान मोरानी से हासिल की। बैत व खिलाफत, आपको खिलाफत व इजाज़त हुजूर सैयदी अच्छे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह से और वालिद माजिद ने भी इजाज़त अता फरमाई थी, मगर आप मुरीद हजरत अच्छे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में फरमाते हैं कि आप सिलसिला आलिया कादरिया के 37वें इमाम हैं। आपके फ़जाइल व कमालात खातिमुल अकाबिर अस्साहे आले रसूल मारवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। आप सिलसिला आलिया कादरिया के 37वें इमाम सेके तरीक़त हैं। आप 13वीं सदी हिजरी के अकाबिर औलिया अल्लाह में से थे। आपकी वो अजीम शख्सियत थी जिसकी मसाई कोशिश से इस्लाम व महजब अहले सुन्नत व जमात को इस्तेकाम हासिल हुआ। बड़े निडर, बेकाब, शरीफ और मेहरबान थे। गरीब व मिस्कीन की ज़रूरतों को पूरी करते, उलूम ज़ाहिर बातीन व माहिर थे। आपके मुकाशिफा में अजीब शान थी। आपने अपने असलाक बुजुर्ग की जिंदह व ताबिदह यादगार थे। आपके दौर में सिलसिला बरकातिया की काफ़ी इसाद हुई। आपकी शान बड़ी अरफा व आला, चुनाचे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़बाने फ़ारसी 42 असार कलम बंद फरमाए हैं। आपके सदात व सिफात में शरीयत की पूरी जलवागारी थी और शरीयत मुतर्रहा की गायत दर्जा पाबंदी फरमाते। नमाज व जमात मस्जिद में अदा फरमाते और तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा ना होने देते। नियत करीमुन नफ्स, दरिया दिल, नेक दिल, ऐब पोश और हाजत बरारी में यगानाए असर थे। जो आयदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मनपूल हैं, वही दुआ अता फरमाते हैं। हमेशा लिबास दरवेश व उल्मा में रहते हैं। तकल्लुफ़ात मसाई खाना से परहेज करते हैं। आपकी महफिलों मजलिस में वाइज नात ख्वानी व मनकबत, ख़त्म कुरान शरीफ, किरात, दलाइलुल खैरात, उर्स की ईमानदारी बाकी रखी थी। फजूलियात की हुजूर के दरबार में जगह ना थी। ज़ाहिर शरीयत से एक ज़र्रा तवज्जो गवा नहीं करते। आपकी जोदो सखावत, आपकी सखावत का ये आलम था कि लोग मसनई ज़रूरियत बताकर जब चाहते रुपया मांग कर आपसे ले जाते और चोर बदमाश मुसारिफों की सूरत में आते और आपकी बारगाह से बामुराद लौटते। आपकी अहलिया मोहतरमा अर्ज करती हैं कि आप बली हैं तो सबको बली ही समझते हैं। कुछ एहतियात फरमाएं, मगर आप खुद घर में जाकर साइल के लिए ज़रूरी आसिया लाते और दे देते। जो हाजतमंद आता उसकी हाजत पहले करते और अक्सर ऐसा होता अपने कपड़े तक उतार कर दे देते। हर खादिम व मुरीद से निहायत शफ़क़त मेहरबानी से मुआमला फरमाते। उनकी पुरसिस हालत, हवाई जहाज, इंसराम, खता पर माफ़ी, मुआमिनात आदत करीम थी। कसरे नफ्स और कमाल और दरवेशी ये है कि हर किस्म के इस्तेहाक फाइक के हुजूर नमाज जमात एक हाफिज से पढ़वाते, कभी इमाम ना बनते। एक बार मुफ्ती ऐनुल हसन साहब बिलग्रामी ने, जिनका मुकाशिफा बहुत बड़ा हुआ था, जमात में शरीक होकर नमाज तोड़ दी और सलाम के बाद हाफिज साहब से
فرمایا کہ مرد خدا نماز میں بازار جانے اور سودا خریدنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ کہاں پریشان پھریں۔ حضرت مفتی صاحب کا سوال سن کر ان پر سخت برہم ہوئے اور ارشاد فرمایا بہتر ہے کہ آپ خود نماز پڑھائیں، ورنہ حافظ صاحب کے ساتھ پھریں اور شریعت کا استہزا یا مذاق نہ کریں۔ آپ کو نماز میں خود حضور نہیں ورنہ دوسروں پر نظر کیوں آتی ہے؟ آپ کو علوم ظاہری و باطنی کی سند کس سے ملی؟ آپ کو علوم ظاہری و باطنی کی اسناد یعنی سند حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی قدیسہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو اسناد حاصل فرمائی اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ علوبیہ، مصافحات، مسابقہ، سند حدیث، مسلسل، بالاضافہ چہل اسما، حجب الوحل، سند قرآن کریم، عدائل الخیرات، حسن حسین، سیاہ ستہ اور کتب حدیث و فقہ و تفصیل کی اسانت یعنی سندیں عطا فرمائیں۔ آپ کی مثال کارنامہ، آپ نے اپنے دور میں خانقاہ برکاتیہ کی بڑی خدمت کی ہے، مدرسہ و مدرسین، مشائخ، حجرات، خلوات فقراء تعمیر کرائے، عالم فاضل قاری طبیب درگاہ شریف میں معین کیے، ایک محاسب مقرر فرمایا جو تمام حسابات درگاہ شریف رکھے، خدام آستانہ کی خدمت مقرر فرمائی، مسجد میں امام مؤذن مقرر فرمایا، پہلے اکثر خدمت درگاہ و خانقاہ و مسجد مریدین و خلفاء کے سپرد جو عقیدت بلا معاوضہ کرتے تھے، مگر حضرت نے وہ تمام کام اپنے ذمے لے لیے اور خود ہی آزام دیتے تھے۔ فلسفہ معراج اور آپ کی کرامت، منقول ہے کہ بدایوں شریف کے ایک صاحب جو آپ کے مرید خاص تھے، وہ ایک مرتبہ سوچنے لگے کہ معراج شریف چند لمحوں میں کس طرح ہو گئی۔ آپ اس وقت وضو فرما رہے تھے اور آپ فوراً اس سے کہا کہ میاں اندر سے ذرا تولیہ تو لاؤ۔ وہ جب اندر گئے تو کھڑکی نظر آئی، اس جانب نگاہیں کی تو یہ دیکھتے ہیں کہ پرقضا باغ ہے، اور یہاں تک کہ اس میں سیر کرتے ہوئے ایک عظیم الشان شہر میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے کاروبار شروع کر دیا، شادی بھی کر لی، اولاد بھی ہوئی، یہاں تک کہ 20 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب حضرت نے آواز دی تو وہ گھبرا کر کھڑکی میں آئے تو تولیہ لیے ہوئے دوڑے تو دیکھتے کیا ہے کہ ابھی وضو کے قطرات حضرت کے چہرے مبارک پر موجود ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور دست مبارک بھی گیلا ہے۔ وہ انتہائی حیران ہوئے تو حضرت نے تبسم یعنی مسکرا کر فرمایا کہ میاں یہاں 20 سال رہے اور شادی بھی کی اور یہاں ابھی تک وضو خشک نہیں ہوا، اب تو معراج کی حقیقت کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ایام حج کے دنوں میں موجود منقول ہے کہ حاجی رضا خان صاحب مہربی نے حج سے مارک ہو کر مولانا محمد اسماعیل صاحب مہاجر سے بیعت کرنے کی پیش کی۔ مولانا نے فرمایا کہ تم نے حضرت آل رسول صاحب مہربی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی بیعت کیوں
क्यों ना कर ली, वो अब तक हमारे साथ थे। यहाँ तक कि हाजी साहब महरेरा शरीफ जब लौटे तो हजरत के सामने इस वाक़ये को बयान किया। हजरत ने इरशाद फरमाया कि मियाँ उन्हें सुबह हुआ होगा तो मैं अब तक खानकाह शरीफ की सज्जादगी छोड़कर कहीं नहीं गया। आपकी औलादे इकराम, आपका अक़द शरीफ निसार आत्मा बिनते सैयदना मुतखब हुसैन साहब बिलग्रामी से हुआ, जिन से 2 साहबजादे और 3 साहबजादियाँ हुईं। सैयद हुजूर हुसैन बड़े मियाँ, सैयद शाह हुजूर छोटे मियाँ, अंसार फातिमा, ज़हूर फातिमा, रहमत फातिमा कुद्दीसा सिरहुमा। अंसार फातिमा और जौहर फातिमा को ये यके बाद दीगरे सैयद हाफिज हसन साहब आपके भांजे के अक़द में दिया गया, जो लावल्क ख़त्म हो गई। तीसरी साहबजादी रहमत फातिमा, जिनका अक़द सैयद मोहम्मद हैदर बिन दिलदार हैदर बिन सैयद बिन मुतखब हुसैन से हुआ, उनका इंतकाल मक्का मुअज्जमा में व मकम मिना 8 ज़िल-हिज्जा को बरोज जुमेरात 1310 हिजरी में हुआ और वहीं दफन हुए। ये साहिब औलाद थी। इनकी औलाद महरेरा शरीफ में है और सैयद शाह ज़हूर हसन साहब की विलादत 1229 हिजरी में हुई। आपका अक़द अब्बाल इकराम आत्मा बिनते सैयदना दिलदार हैदर बिन सैयद मुंतखब हुसैन से हुआ। उनसे एक साहबजादे हुए जिनका नाम हज़रत सैयद शाह अब्दुल हुसैन अहमद नूरी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह है, और एक साहबजादी कुलसूम फातिमा जो सैयद शाह नूरुल मुस्तफ़ा बिन सैयद शाह गुलाम मुहिद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के निकाह में थी, जो साहिब औलाद ही पैदा हुई।